Hello, Assalamu alaikum. This is Nida Asif, Nati Urdu trainer at CECA. First of all, guys, I want to let you know that CECA is not only providing the free Nati Urdu classes for all the students, but there are also a lot of services which are provided at CECA free of cost. So let me explain you all these services one by one. The first and foremost is free student visa extension. If your visa is going to be expired, so you can come at CECA and for free of cost, your student visa extension will be applied. The second thing is cheapest professional year programs, free TR 485 visa application, free PTE and IELTS if you are tutor of Nati classes, and free Nati classes in 4 languages, which are Nepali, Punjabi, Hindi, and of course Urdu. Besides that, if you are thinking about the Canadian immigration, you can also come at CECA, and of course, your profile will be assessed free of cost. And for any college admission, any course, our professionals will help you in all these free of cost. और इसके अलावा भी कोई visa immigration से related any issue, you can come at CECA और आपको free of cost all these services will be provided. Now, let's start our Nati Urdu lecture. And I will explain the whole structure of the test. This test consists of 2 dialogues. 2 dialogues are not so much lengthy. It's around 300 to 350 words. ये हमारी जो डेली कन्वर्सेशन किसी डॉक्टर किसी भी 2 लोगों के दरमियान हो सकती है. This is the average length कि 300 to 350 words होंगे. And there are 45 marks for each dialogue. 45 plus 45, 90. So the total marks are 90, out of which 63 are passing marks. Not only we have to take the passing marks, we also need to achieve the minimum passing marks of each dialogue, which are 29. So 29 out of 45 are the passing marks in each dialogue, but overall we need to get 63 marks, which are the passing marks for whole test. All right, guys. So this is ये तो मार्किंग क्राइटेरिया हो गया, लेकिन अब ये मार्किंग होती कैसे है? ये मार्किंग होती है अकॉर्डिंग टू deductive marking system. Deductive marking system is when the invigilator is going to assess your test. It is you are at full marks, but जैसे जैसे वो आपका टेस्ट आपका जो रिकॉर्डिंग है वो सुनता जाएगा, हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपकी डिडक्शन होती रहेगी. सो आई ऑलवेज स्ट्रेस दैट आप कोशिश करें कि हर सेगमेंट को एक अलग से एक अपना क्वेश्चन उसको कंसिडर करें और ट्राई करें कि उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें. फॉर एग्जांपल कुछ सेगमेंट्स छोटे होते हैं और कुछ सेगमेंट्स लेंथी होते हैं. सो वी कैन एक्सपेक्ट एनी मिस्टेक इन द लेंथी सेगमेंट्स, बट ट्राई टू बी परफेक्ट इन द स्मॉल सेगमेंट्स, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ना ही मेमोरी की जरूरत है ना ही नोट्स की जरूरत है, जस्ट फ्लुएंसी और एक्यूरेसी की जरूरत है. सो बी परफेक्ट इन द स्मॉल सेगमेंट्स, बट ट्राई टू बी ऑल्सो achieve the maximum in the lengthy segments. अब lengthy segments में कैसे हम maximum marks achieve कर सकते हैं? For example, lengthy segments में क्या options, क्या probabilities हो सकती हैं mistakes की? वो ये कि अगर आपने कोई segment सुना and you have missed some information or you are not able to get the correct information. So उसके लिए आपके पास एक option होता है, you can get the repeat. आप अपने इन्विजिलेटर से कह सकते हैं कि वी वांट टू लिसन दिस सेगमेंट अगेन. सो आप अपने जो नोट्स इनकम्प्लीट हैं उसे कंप्लीट करके यू कैन मेक इट बेस्ट और यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स. ऑलराइट. इसके अलावा देयर आर 4 एसेंशियल की क्राइटेरियाज जिनको मैं मेजर मिस्टेक्स कंसिडर करती हूँ. इसमें सबसे फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी. Accuracy means correctness of information. If you are listening information in one language, you have to interpret into the other language accurately. All right. So you don't need to be translated word to word. You just need to interpret the meaning. You just say the meaning of the information you have listened in one language, and that is accuracy. All right. And the second criteria is distortion.
It's opposite of accuracy. Distortion means you have mispresented the information. For example, if you have listened, these things are illegal in Australia and you have listened legal, so this is distortion, this is mispresentation of information and it's not a minor mistake, this is a major mistake. ठीक है, so ये small words हैं जो legal illegal इस type में अगर आप mistakes करेंगे, so this comes under distortion. ठीक है, third major criteria is addition. All right, if you are adding sentences which are not necessary to interpret the meaning, so this is addition. All right, interpretation का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ sentences add करके अपना meaning convey करें. Yes, you can add words, but you can't add sentences. कोशिश करें कि जितने sentences में बात एक language में convey की गई है, उतने ही sentences में आप दूसरी बात को दूसरी language में convey करें. All right. So you can add words to convey your meaning for the interpretation, but not the sentences. It will come under addition. ठीक है? And the fourth major criteria is omission. Omission is, as I mentioned earlier, it's a missing information. कि आपने कुछ information सुनी है, but you have missed some of it. जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ segments बहुत ज़्यादा भी और बहुत lengthy भी होते हैं. ठीक है, and we are not able to grab all the information in one go, so we have the opportunity to take the repeat, जिसमें आप अपने notes complete कर सकते हैं. Now the question is the repeat is free of negative marking or not? For the first time, if you are taking the repeat, so there is no negative marking. In each dialogue, आप एक दफा repeat ले सकते हैं, जिसकी कोई negative marking नहीं है. और ये आप कहीं भी ले सकते हैं, even for the topic of the dialogue. अगर आपको dialogue का topic समझ नहीं आया, तो आप वो भी सुनने के लिए repeat ले सकते हैं. Alright. So for the topic, we don't need to do any interpretation or translation. We just need to listen it carefully, because topic के अंदर ही आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि किन दो लोगों के दरमियान dialogue होने जा रहा है और किस topic पे होने जा रहा है. So the dialogue को understand करने के लिए क्या background है इसका, क्या context है, कौन सी topic की vocabulary use होगी, so ये सारी information हमें dialogue के topic से मिलेगी. So always be attentive at that time. Yes, and that time you can also take repeat. और अगर स्टूडेंट्स फील करें कि मैं शुरू में रिपीट नहीं लूंगा और मे बी इन द एंड कहीं कोई लेंथी सेगमेंट आए तो मैं लूंगा, सो डोंट गो फॉर द डैट. आपको जहां लगे आपने इंफॉर्मेशन मिस की है, जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई है और इसके बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो एंड और स्टार्टिंग को मत देखें, जस्ट गो फॉर द रिपीट. ओके, and if you are going to take second repeat or third repeat, so उसकी -1 negative marking होगी every time you will take the repeat. But first time it's gonna be free of negative marking, but second, third और जितनी भी दफा आप लेंगे वो -1 होता जाएगा. और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने सिर्फ 3 repeat लेने हैं, 4 आप ले सकते हैं, but obviously -1 होता रहेगा. Alright guys, so I hope this is all about the structure of the test. 2 dialogues, 45 marks each, 29 are the minimum passing marks in each dialogue, but 63 are overall passing marks. So if you take 29 in each dialogue, तो भी आपके passing marks नहीं बनेंगे. तो अपना aim, अपना focus रखें, 32, 33 आपके minimum each dialogue में marks होने चाहिए, so that आप easily overall passing marks achieve कर सकें. And one more thing, interpretation के दौरान fluency is very important. You are not supposed to taking pauses again and again, and you are not supposed to take self corrections, which mostly happens. Like if I am doing to interpret a segment and I think that in this interpretation I have taken so many pauses or I might not have done it correctly, so I can say that I repeat it. Sorry, I want to take, sorry, I repeat it again, and then you interpret it again. So
आपका जो सॉरी से पहले का है वो बिल्कुल वो सुनेंगे नहीं और सॉरी के बाद वाले को कंसिडर करेंगे, बट इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन। इसका अगर आप अगेन एंड अगेन ये वाली फिलोसफी यूज करेंगे सेल्फ करेक्शन की, तो वो आपको मेंशन करके भेजेंगे कि यू हैव टेकन सो मेनी सेल्फ करेक्शंस। सो this is very important. All right guys, so this is all about the structure marking criteria of the test और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, किन टॉपिक्स पे डायलॉग्स होंगे वो भी आप नोट कर लें, विच इंक्लूड्स बिजनेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हाउसिंग, इमिग्रेशन, लीगल, सोशल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ओके, दीज आर द टॉपिक्स जिन पे हमारे डायलॉग्स आ सकते हैं। We have vocabulary for each topic separately, but we also have a general vocabulary as well. So the students who will join me in the class, they can get this vocabulary list, which is a general for all dialogues. अगर आप ये prepare कर लेते हैं तो most probably आप 70% of the vocabulary आपकी prepare हो जाती है, but it should be on your fingertips, sorry, so that कि जब आप डायलॉग सुन रहे हैं और जो भी वर्ड आया है क्विकली उसका मीनिंग आपके माइंड में आना चाहिए। और इट गोज इन ईदर वे, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश, बोथ वेज में आपकी वोकैबुलरी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ऑल राइट, आज हम एक डायलॉग करेंगे पहले एंड देन वी विल डू सम वोकैबुलरी एज वेल। ये जनरल वोकैबुलरी के अलावा टॉपिक वाइज वोकैबुलरी भी होती है, तो स्टूडेंट्स यू कैन कम इन द क्लास एंड यू कैन जॉइन मी एंड I can provide you all the vocabulary topic wise and general vocabulary, okay? And if you want to make preparation for your that test, so and you want me to analyze how much preparation you have done or आप किस stage पे हैं, so I can assess you, I can give you marks, I can tell you which areas you need to improve और कौन सी mistakes हैं जो you need to avoid. Okay, every Sunday 11 से 1 नाटी उर्दू CCL की क्लास होती है at CECA platform. So please students come and join me and I can help you in all perspectives. All right students, so let's start the dialogue. Okay, अब डायलॉग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू द नोट टेकिंग टेक्निक्स। ओके, सम स्टूडेंट्स से वी डोंट नीड टू टेक नोट्स क्योंकि कुछ सेगमेंट्स छोटे होते हैं तो हमें वी कैन मेमोराइज एंड वी कैन डू। ऑल राइट, ये एक अच्छी अप्रोच है फॉर स्मॉल सेगमेंट्स, ठीक है, बट यू आर नॉट नोन कि कौन सा सेगमेंट छोटा है कौन सा बड़ा है, इवन के द स्टार्टिंग सेगमेंट कुड बी द लेंथी, और आप नोट्स टेकिंग के लिए अगर प्रिपेयर नहीं है, यू कांट रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द नोट्स टेकिंग। ठीक है, चाहे सेगमेंट छोटा है चाहे सेगमेंट बड़ा है, यू हैव टू टेक नोट्स। और नोट्स टेकिंग की मैं आपको एक जो स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ, दैट इज के ट्राई टू राइट वन थिंग इन वन लाइन, के जो एक बात हो रही है उसको एक लाइन में लिखें, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, लाइक वी मेक द बुलेट पॉइंट्स। ओके, कंसीडर करें इस पेज पे ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स हैं। सो पहली लाइन को पहली में, दूसरी को तीसरी में, और मिनिमम 3 वर्ड एक बात के आप जरूर लिखें इफ यू वांट टू बी गुड एट नोट्स टेकिंग। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन इट कैन पॉसिबल, और इफ यू विल नॉट, it's not possible of course. Okay, so what I'm going to say that take the notes in each line, और अगर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं मिस हो जाती है, फॉर एग्जांपल दूसरी बात आप मिस कर देते हैं या तीसरी बात मिस कर देते हैं, वो लाइन छोड़ दें, अगली बात का नोट लें। मतलब बिल्कुल भी नोट्स टेकिंग छोड़नी नहीं है आपने, आपको दूसरी बात की समझ ना आई, लीव इट, तीसरी बात की समझ आ रही है वो लिखें, आखिरी बात की समझ आ रही है वो लिखें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सेगमेंट एक कंप्लीट होता है उसके बाद 3-4 सेकंड्स लॉन्ग एक बीप होती है जिसमें आपके पास टाइम होता है कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिख लें
Okay, now you have missed some information. After 2, 3, 4 seconds आप अपने इन्विजिलेटर को कह सकते हैं कि प्लीज रिपीट दिस सेगमेंट अगेन. फायदा क्या हुआ कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यू हैव रिटन इन द फर्स्ट को. नाउ यू नो कि मैंने सिर्फ सेकंड वाली बात पे फोकस करना है क्योंकि बस मेरी वही इंफॉर्मेशन मिस हुई है. ऑलराइट, सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू while taking notes. Okay, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, एक ही लाइन में सारे नोट्स लिखना शुरू कर देंगे, इधर से शुरू करेंगे और साथ वर्ड्स 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 सारे लिखते जाएंगे, यू विल नॉट बी इन इंटरप्रिटेशन. आपको समझ नहीं आएगी आंसर करते हुए कि हमने कौन सी बात को पहले करना है, कहाँ पे ये बात खत्म हो रही है और नेक्स्ट बात मैं क्या स्टार्ट करूं. ऑलराइट, सो गाइस, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द dialogue. Good morning. I'm sorry to have kept you waiting. The traffic out there is so bad on Hoddle Street that I was stuck. Anyway, now what can I do for you, sir? What I can do for yourself. So it is not a small segment. It was a lengthy segment. She mentioned a street. I got that word. Probably if you haven't got that, तो ये important information है कि Hubble Street पे she was stuck in the traffic. Okay, so I'm sorry to kept you awaiting. जो मैंने notes लिए हैं, I'm gonna tell you that. Okay, so good morning. Sorry, kept awaiting. Hoodle Street. And the other information is in my mind कि वो traffic में फंस गई थी. And the last information which I have taken, what I can do for you, sir. So how you will interpret it? Again, good morning, good evening, ये words important है. इनका आपने जरूर ही इनका आपके translation आपको पता होनी चाहिए. इनके meanings पता होने चाहिए. Good morning, सुबह बखैर. Good afternoon, दोपहर बखैर. Good evening, शाम बखैर. And good night, शब बखैर. All right, so after beep, you can also take 2-3 more seconds and then you can start your answer fluently and confidently. It should be loud and clear. जब आपका आंसर रिकॉर्ड हो रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर जा रही है. ठीक है. सो सुबह बखैर. आपको इंतजार कराने के लिए माफ करें. बाहर हुडल स्ट्रीट पर ट्रैफिक की हालत बहुत खराब है. मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ जनाब. ठीक है, सर को उर्दू में जनाब बोलते हैं. ऑलराइट, केप्ट यू अवेटिंग, इंतजार करवाने के लिए या आपको इंतजार की हालत में रखने के लिए. सो इट्स नो ट्रांसलेशन, हमने सिर्फ मीनिंग कन्वे करना है कि आपको मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा. बाहर हुडल स्ट्रीट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी और बहरहाल मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ. ठीक है. एनीवेज मीन्स बहरहाल या खैर. खैर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ जनाब. I hope it's clear, all of you guys who are listening to me, who are listening this video. ठीक है. So क्या चीज है इम्पोर्टेंट, नोट्स कैसे लेने हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपने लिखने हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है विच शुड बी रिटन. और हुडल स्ट्रीट उसने क्यों मेंशन किया, वो वैसे भी बात कर सकते थे कि बाहर उस ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी या मुझे आने में देर हो गई. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड ही इसीलिए की जाती है सो दैट दे कैन असेस यू कि आपने ये वर्ड्स पिक किए हैं कि नहीं. ऑलराइट, सो जहां भी नंबर आ जाएं, एड्रेसेस आ जाएं, स्ट्रीट नेम्स और organizations and departments के name, try to grab the information. This is important. और second thing I want to mention that departments and organizations के नामों की आपको translation या interpretation तो होती नहीं है, translation ही होती है, वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. You can take the names as it is, like visas के names भी आप इसी तरह ले सकते हैं जैसे holiday visa, working visa, स्टूडेंट वीजा. सो इनकी भी आपको ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है. सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज
मेरा बेटा जो यहाँ मेरे साथ छुट्टियों पर है, वो यहाँ 6 महीने का अंग्रेजी का कोर्स करना चाहता है। मैंने सुना है कि उसे तालिब इल्म वीजा की जरूरत है। क्या ये दुरुस्त है? 6 महीने का अंग्रेजी का कोर्स, सुना है तालिब इल्म वीजा की जरूरत है। ठीक है, अब उसने उर्दू में तालिब इल्म वीजा बोल दिया, जिसे स्टूडेंट वीजा बोलते हैं। इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन गो फॉर इट, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह करें। बट इफ यू डोंट से इट तालिब इल्म वीजा, जस्ट से स्टूडेंट वीजा, इट्स ऑल फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट, तो उसने कहा नोट्स क्या लिए हैं कि मेरा बेटा छुट्टियों पर है, 6 महीने का अंग्रेजी का कोर्स, एंड सुना है तालिब इल्म वीजा की जरूरत है। ठीक है, एंड इन द एंड ही आस्क्ड क्या ये दुरुस्त है, सो डोंट मिस इट। ठीक है, क्या ये दुरुस्त है, जस्ट राइट दुरुस्त और एनी वर्ड जिससे आपको याद रहे कि उसने ये बात पूछी है कि इज दैट करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट, सो ये नोट्स हो गए जो मैंने अभी बोले हैं, एंड हाउ वी कैन इंटरप्रेट। 4 लाइन्स में मैंने ये नोट्स लिए हैं, सो यू गाइस नीड टू नो कि 4 बातें की हैं, इवन की चौथी बात ये है क्या ये दुरुस्त है, दैट इज द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सो दैट आपको पता हो कि हमने हर चीज को ही इंटरप्रेट करना है, कुछ भी मिस ना हो जाए। ऑल राइट, my son who is here with me on holiday, he wants to pursue a 6 months English course here. I have heard that he needs student visa. Is that correct? ठीक है, so क्या ये ठीक है? Or you can make it simple. My son is with me on holidays. He wants to do a 6 months English course. I heard that he needs to have a student visa. Is that correct? ठीक है, अगर आपने नोट्स इस तरह लिए होंगे तो जस्ट से इट इन अदर लैंग्वेज। एंड वन मोर थिंग गाइस, कुछ स्टूडेंट्स को उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये बहुत अरसा हो गया हमने उर्दू लिखना छोड़ दिया है। वी हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग उर्दू इन इंग्लिश, जैसा कि हम टेक्सटिंग करते हैं। ठीक है, हम उर्दू की बात ही इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर फास्ट इनफ इन दैट यू कैन टेक नोट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्सटिंग। ओके, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप दोनों ही लैंग्वेजेस इंग्लिश में नोट्स ले रहे हैं तो यू फॉरगेट दैट कि अब मैंने इंग्लिश बोलनी है कि उर्दू। Now so many students might now can say that it's understood, it's common sense कि अगर इंग्लिश में नोट्स लिए हैं, अगर किसी ने अभी इंग्लिश उर्दू बोली है तो ऑब्वियसली हमने इंग्लिश में उसको इंटरप्रेट करना है। बट ऐसा नहीं होता, जब आप एक ही लैंग्वेज में सारे नोट्स ले रहे होते हैं सो यू फॉरगेट दैट और आप वही लैंग्वेज दोबारा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, सो इट हैपन्स, इट हैज हैपेंड। अगर मैं आपको इस तरह सुन रही हूँ और मैं तो आपको टोक दूंगी, ओके नो यू आर डूइंग रॉन्ग, but in the exam nobody is there to say that you are not doing in the right language, so you have to be very careful। और उसका क्या आपको मैं ट्रिक दे सकती हूँ कि आप हर सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले, अगर ये मैंने इंग्लिश लिखी है तो आई नो कि अब मैंने इंग्लिश में नोट्स नहीं है तो उर्दू बोलनी है। ठीक है, सो आई विल राइट यू इन द सर्कल। नेक्स्ट आई विल क्विकली राइट बिफोर द सेगमेंट स्टार्ट्स इन ई, कि जब भी मैंने बोलना है अब मैंने इंग्लिश में बोलना है। तो फिर आप उर्दू में नोट्स लें या इंग्लिश में नोट्स लें, डजंट मैटर, यू विल कीप रिमेंबर बाय दिस ई कि मैंने इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन क्विकली राइट यू कि अब मैंने उर्दू बोलनी है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। समटाइम्स ये होता है कि अगर एक सेगमेंट उर्दू में है तो नेक्स्ट भी उर्दू में हो सकता है। ये इट हैपन्स वेरी वेरी रेयरली, बट मतलब ये नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन इट कुड बी। ओके, सो उस साइड का भी आपने ख्याल रखना है। एंड वन अदर थिंग क्या हो सकती है कि आप एक लाइन लगाएं, यहाँ पे यू लिखें, यहाँ पे ई लिखें, सारे उर्दू के नोट्स इस साइड पे ले लें, इंग्लिश के इस साइड पे लें। सो आपको यू में नो कि अभी मैंने इंग्लिश में नोट्स लिए तो आई हैव टू स्पीक उर्दू नाउ। ठीक है, सो दिस इज अनदर ट्रिक इफ यू वांट टू फॉलो एनी वन ऑफ दैट, बट व्हेन यू आर टेकिंग बोथ नोट्स इन सेम लैंग्वेज, लाइक अगर आप इंग्लिश में ही सारे नोट्स ले रहे हैं। Okay, all right guys, let's move to the next segment.
That's correct. Anyone looking for formal education in Australia needs to hold a valid visa. As your son wants to study in Australia, he needs a student visa. As your son wants to study in Australia, he needs a student visa. All right. So notes क्या लिए मैंने? Yes, correct. Only I have written correct. Looking formal education, holds visa, valid visa. As your son wants to start study in Australia, he needs a student visa. Okay, so how I will interpret it? कोई इसमें vocabulary word नहीं है, ठीक है, सारा simple है. Education तालीम होता है, ठीक है. Formal is the vocabulary word, ठीक है, ये रस्मी है इसका मतलब, ठीक है. जैसे हम बोलते भी हैं कि आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है कि इतना रस्मन बात ना करें, या जैसे हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग होती है कि हमें पता है कि हमने काम पे जाना है तो हमारा इट शुड बी फॉर्मल, और अगर दूसरा है कोई और जॉब है जिसके लिए फॉर्मल ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है तो वी डोंट यूज द वर्ड फॉर्मल. ओके, फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी, एजुकेशन तालीम, लुकिंग फॉर तलाश में है, ठीक है, देख रहा है, तलाश में है. In Australia needs to hold a valid visa. Valid visa मतलब दुरुस्त वीजा. Valid होता है बिल्कुल दुरुस्त, ठीक, ठीक है. तो ठीक या दुरुस्त, both words can be used. So as your son wants to study in Australia, he needs a student visa. जैसा कि आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करना चाहता है तो उसे एक तालिब इल्म वीजे की जरूरत है या उसे एक स्टूडेंट वीजे की जरूरत है. Simple. Okay, now I'm going to interpret the whole segment and it should be loud and clear. Okay. जी हाँ, ये दुरुस्त है. जो कोई भी ऑस्ट्रेलिया में रस्मी तालीम की तलाश में है उसे दुरुस्त वीजा रखने की जरूरत है. आपका बेटा अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है तो उसे भी तालिब इल्म वीजे की जरूरत है या उसे भी स्टूडेंट वीजे की जरूरत है. That's it. ओके, सो जैसे मैंने या करके 2 इंटरप्रिटेशंस किए हैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना. जस्ट वन इज इनफ कि जो एक दफा बोली है बस वही बोलनी है. या करके कि ये भी हो सकती है इसकी इंटरप्रिटेशन, ये नहीं करना आपने. ओके, सो आई एम गोना से इट अगेन. जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है. जो कोई भी ऑस्ट्रेलिया में रस्मी तालीम की तलाश में होता है उसे दुरुस्त वीजा रखने की जरूरत होती है. जैसा कि आपका बेटा यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है तो उसे भी स्टूडेंट वीजे की जरूरत है. All right, so next segment. ठीक है, क्या आप बराए करम मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कौन से तमाम कागजात की जरूरत होगी? वो पिछले महीने ही 14 बरस का हुआ है. पिछले महीने ही 14 बरस का, ठीक है. अब क्या बातें उसने की हैं? ठीक है, बराए करम बता सकते हैं क्या करने की जरूरत है, मुझे कौन से कागजात की जरूरत, और वो पिछले महीने ही 14 बरस का हुआ है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, ओके, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड इजी है. कोई इसमें वोकेबलरी वर्ड नहीं है, सारे हमें वर्ड्स के मीनिंग पता है. कागजात बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को. इसके लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट आई नीड टू डू. कौन से कागजात की जरूरत होगी, विच डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड. He turned 14 last month. Okay, now I am going to make it a sample answer कि हमें इसका कैसे आंसर बोलना है. Okay, can you please tell me what all I have to do for that? What all documents I would require? And he turned 14 last month. Okay. Can you please tell me what I need to do?
what documents do I have to bring, or what documents I would require. He turned 14 last month. Okay, and now इस तरह जिस मुझे अंदर से जैसे मुझे एक दो दफा pauses ले लिए, I can say sorry, I repeat myself. Okay, can you please tell me what I need to do now, what all documents would I require, and he turned 14 last month. तो आप अपनी सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं, बट दैट नीड्स टू नॉट टू बी डू अगेन एंड अगेन, क्योंकि इससे आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. सॉरी के बाद वो आपको लिसन करेंगे तो हो भी सकता है कि वो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लें इफ यू विल डू इट अगेन एंड अगेन. Alright, so let's move to the next segment. Yes. You need to fill an online form 500 to lodge a student visa. However, since your son is only 14, he needs a legal guardian who's either an Australian citizen or a permanent resident. Australian citizen or permanent resident. ठीक है, just write the PR or AC. Student visa just write SV. Okay, so क्या notes लिए मैंने? Online form 500, launch student visa only written SV. 14. So she said as your son is just 14, he needs legal guardian who should be either Australian citizen or permanent resident. ठीक है, ऑनलाइन ही होगा. ठीक है, 500 फॉर्म 500 ही फॉर्म 500 या फॉर्म 500, फॉर्म नंबर 500 ऑनलाइन भरना है, फिल करना, भरना. लीगल गार्डियन कानूनी सरपरस्त, गार्डियन होते हैं सरपरस्त, एंड लीगल इज कानूनी. कानूनी सरपरस्त की जरूरत है जो कि या तो ऑस्ट्रेलवी शहरी हो या परमानेंट मुस्तकिल रिहायशी. परमानेंट होता है मुस्तकिल एंड रेजिडेंट रिहायशी. सो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इज ऑस्ट्रेलवी शहरी एंड PR is मुस्तकिल रिहायशी. So these are vocabulary words which are mentioned in general vocabulary as well. So it should be in your fingertips ताकि आपको फौरन से इसके मीनिंग पता हो. ठीक है, अब ये लेंथी सेगमेंट नहीं है. ठीक है, बट if you will write with the bullet points and with just abbreviations, so ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इसके तमाम नोट्स लेना. Okay, so what's the answer is? तालिब इल्म वीजे की दरख्वास्त देने के लिए आपको फॉर्म 500 ऑनलाइन भरने की जरूरत है, लेकिन जैसा कि आपका बेटा सिर्फ 14 साल का है तो उसके लिए एक कानूनी सरपरस्त की जरूरत है जो कि या तो ऑस्ट्रेलवी शहरी हो या मुस्तकिल रिहायशी. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर बट आई कैन से इट अगेन. तालिब इल्म वीजे की दरखास्त डालने के लिए एक फॉर्म 500 को ऑनलाइन भरने की जरूरत है, लेकिन चूंकि आपका बेटा सिर्फ 14 साल का है इसलिए आपको एक कानूनी सरपरस्त की जरूरत है जो कि या तो ऑस्ट्रेलवी शहरी या मुस्तकिल रिहायशी हो. ठीक है, सो जो आंसर शुड बी लाइक फ्लुएंट, क्लियर एंड लाउड, क्योंकि जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही हो यू हैव टू बी बिट मोर लाउड. ठीक है, all right, so let's move to the next segment. मैं नहीं जानता कि मैं इन सब का इंतजाम कितनी जल्दी कर सकूंगा. हम यहाँ छुट्टियों पर आए थे और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ना चाहेगा. हमारे सारे कागजात अंबाला में हैं. All right, so what is it written here? मैं नहीं जानता मैं इन सब का इंतजाम कितनी जल्दी कर सकूंगा. हम यहाँ छुट्टियों पर आए थे, मुझे नहीं मालूम था मेरा बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है. हमारे सारे कागजात अंबाला में हैं. अंबाला इज द इम्पोर्टेंट वर्ड. सो आई डोंट नो कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है, बट आई हैव टू रिटन इट. मुझे ये लिखना ही है, मुझे ये नोट्स टेकिंग में ऐड करना ही है. मुझे समझ आया, मुझे पता है इस लोकेशन का कहीं नहीं पता है, बट यू हैव टू राइट इट. ठीक है, ऑलराइट. सो
इंतजाम कितनी जल्दी कर सकूंगा, हाउ क्विकली आई कैन मैनेज दीज डॉक्यूमेंट्स। छुट्टियों पर यहाँ आए थे, we came on holidays, we came here on holidays and I didn't know my son wants to study here. Our all documents are in Ambala. Or you can say I had no idea that my son would like to study here. Our all documents are in Ambala. कागजात को आप पेपर्स भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, both are correct. All right, now I'm gonna say its interpretation in English. I don't know how early I will be manage all these documents. We just came here for holidays and I had no idea that my son would like to study here. Our all documents are in Ambala. So I hope it's clear. कोई इसमें vocabulary words नहीं है. Just उसने एक ही बात की है, मैं नहीं जानता कितनी जल्दी ये सारे papers और documents I can make them available. We came on holidays. I didn't know my son would like to study here. And our all documents are in Ambala. All right, guys. So let's move to the next segment. We also need to see some proof of financial evidence. This is to verify the student's access to funds to meet his tuition fees and living expenses here. So I'm gonna take its repeat. यहाँ पे मेरे free of cost होगा. I means कि इसकी कोई negative marking नहीं होगी. I want to listen it again क्योंकि I'm was not mentally prepared. So कुछ notes मैंने ले लिए हैं, but I'm not gonna take a repeat. We also need to see some proof of financial evidence. This is to verify the student's access to funds to meet his tuition fees and living expenses here. Verify the student's access to funds to meet the expenses here. I think that was just expenses or tuition fee something. Expenses I heard, expenses here. Okay. So क्या notes लिए हैं मैंने? See some financial evidence to verify the student's access to funds to meet his expenses here. Okay. So financial, mali, funds, financial evidence. Mali सबूत, evidence होता है सबूत. Verify, जांचना. Okay, so financial माली सबूत. So हमें माली सबूत को जांचने की जरूरत है कि तालिब इल्म को ट्यूशन फीस और अखराजात को पूरा करने के लिए फंड्स तक रसाई हासिल है. ओके. असेस रसाई, स्टूडेंट सक्सेस, तालिब इल्म की रसाई है. फंड्स ही होता है. ठीक है. लिविंग एक्सपेंसेस, रहने के अखराजात. ट्यूशन फी ही होती है. ठीक है. So I'm gonna say it again. हमें माली सबूत को जांचने की जरूरत है कि तालिब इल्म को ट्यूशन फीस और अखराजात पूरे करने के लिए फंड्स तक रसाई हासिल है. All right. So let's move to the next segment. ये बहुत मुश्किल अमल है. पैसों का कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले मुझे मेरे दोस्त से पूछना है कि वो मेरे बेटे का कानूनी मुहाफिज बनेगा या नहीं. बेटे का कानूनी मुहाफिज बनेगा कि नहीं. Like legal guardian, as we have mentioned in the previous segment. Okay, so notes are मुश्किल अमल, पैसों का मसला नहीं, दोस्त से पूछना है कि वो मेरे बेटे का कानूनी मुहाफिज बनेगा कि नहीं.
This is very difficult process. There is no problem with money, but first I have to ask my friend if he can be my son's legal guardian or not. So छोटा, not तो छोटा भी नहीं, मतलब एवरेज सेगमेंट है, हम इसको बड़ा भी नहीं कह सकते, बट कुछ vocabulary words हैं that should be, those words should be corrected, और वो अदर लैंग्वेज में उनका सही होना चाहिए, जैसे कि कानूनी मुहाफिज, लीगल गार्डियन, yeah, and that's it. I'm gonna say it again. This is very difficult. There is no problem with money, but first I have to ask my friend if he can be my son's legal guardian or not. Okay, so this is quite easy. So move to the next segment. Mr. Rawat, there are two more things you should know. Your son needs to have a medical checkup, and the application fee for a student visa is $560. Medical checkup, application fee for student visa is, student visa just as fee $560. Okay, so this number should be correct. So अपनी तमाम एनर्जी आपकी नंबर्स पे होनी चाहिए कि कितनी फीस है. Okay, all right, so $560 is a student visa fee, जो कि बहुत important है. Okay, and Mr. Rawat, जो कि उसने नाम लिया था, it could be any name. So जो मैंने सुना, it's Mr. Rawat. आपको दो चीजों का इल्म होना चाहिए. एक, बेटे को तिब्बी जांच पड़ताल कराना होगा, और तालिब इल्म वीजे के लिए दरखास्त की फीस $560 है. ठीक है, गिनती आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, नंबर जो एज हो सकती है, फिर डेट ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो ट्राई करें 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए उर्दू में. ठीक है, तो $560 वीजे की फीस है. और मेडिकल को तिब्बी बोलते हैं, मेडिकल चेकअप, तिब्बी जांच पड़ताल. ठीक है, सो मिस्टर रावत, आपको दो चीजों का इल्म होना चाहिए. एक, बेटे को तिब्बी जांच पड़ताल की जरूरत है, और तालिब इल्म वीजे के लिए दरखास्त की फीस $560 है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. आपकी मदद का बहुत शुक्रिया. मैं तमाम दस्तावेज को मजीद अमल के लिए तैयार करना शुरू करता हूँ. उसके बाद मैं दोबारा आपके दफ्तर से रुजू करूंगा. उसके बाद मैं दोबारा आपके दफ्तर से रुजू करूंगा. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प. I will start preparing all the documents for the further process. After that, I will contact your office again. ठीक है, आपके दफ्तर से रुजू करना, कांटेक्ट करना, रुजू होता है कांटेक्ट करना. दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, मजीद अमल के लिए, मतलब फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस or for the further process. I will start preparing all the documents for the further process. After that, I will contact your office again. So, guys, this dialogue ends here. Okay, तो ये एक एजुकेशन और या इमिग्रेशन से रिलेटेड एक टॉपिक था. ठीक है, जिसमें वीज़ा इंफॉर्मेशन, वीज़ा लेना है, कैसे लेना है, बेटे ने पढ़ाई करनी है. ठीक है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन. सो जब हमें इमिग्रेशन या वीजे का पता होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाएगी. सो ऑल राइट गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज ज्वाइन मी इन संडेज क्लास. 11 से 1 बजे मेरी क्लास होती है. किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कम इन द क्लास. और अगर आपका टेस्ट नियर टू एनी मंथ, मतलब कभी भी है क्लोजली, so again you are welcome to join me on every Sunday 11 to 1. I can analyze you, I can assess you कि आप मतलब कितने पानी में है, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं to pass this test in one go. All right, but जाने से पहले I am gonna explain all the services which are provided at CE CA free of cost.
अगर आपको वीजा इमिग्रेशन रिलेटेड से कोई भी इश्यूज हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर फेसबुक पेज. You will be replied in messenger as soon as possible, or you can also contact us through phone or email. All right, so the services are free student visa extension, cheapest professional year programs, cheapest health covers for students and for overseas visitors, free PT and IELTS classes, free Nati classes in 4 languages: Hindi, Punjabi, Nepali, and Urdu, free assessment for Canadian immigration. And if you want to choose any course or college, yes, again, CECA professionals and consultants are here to help you for any kind of migration consultation. All right, guys, so please take care of yourself. We will join you next Sunday 11 से 1 बजे. अपना ख्याल रखिएगा and best wishes for your preparation for the NATI Urdu test. Allah Hafiz.